اور آج کا جو ٹاپک ہے، ہم کہاں پر بو رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم کہاں پر بو رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارا بونا جو ہے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، شاید ہو سکتا ہے فائنینشلی کسی جگہ پر بو رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اپنے ٹائم کو بوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں، دن آتا ہے، وقت آتا ہے کہ آپ اس کو کاٹتے بھی ہیں. اس لیے آپ جب بیج بوتے ہیں تو بیج کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ فصل کو بھی کاٹتے ہیں. سو تعین کرتا ہے کہ آپ کی فصل اچھی ہے یا بری، آپ نے بیج کہاں پر ڈالا ہے اور وہ بیج کیسا ہے. سو اس لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر بو رہے ہیں، ہماری پلیس کون سی ہے. آج ہماری زندگی میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، ہم زیادہ بوتے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے یا بری جگہ ہے. سو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، غلطیوں اس کا 6 باب اور اس کی 8 ورس. جی نکالیے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. آمین. دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم مسیح میں آتے، ہماری زندگی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. ہماری زندگی میں وہ تمام طرح کی برائیاں، ہم فلیش میں زندگی گزار رہے تھے، ہم جسم میں زندگی گزار رہے تھے. ہمارے کام جو تھے وہ سب جسمانی تھے. ہم جو کام کرتے تھے وہ تمام کام کیا کرتے تھے، ہمارے جسم کو خوش کرتے تھے، وہ ہمیں خوش کرتے تھے. ہمارے جسم کی جو جسمانی خواہشات تھی، ہمارا فوکس وہ تھی. ہمارا دھیان جو تھا، ہمارا فوکس جو تھا وہ صرف اور صرف جسمانی تھا، روحانی فوکس نہیں تھا. مگر جب ہم مسیح میں آتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں، روح میں پیدا ہوتے ہیں، ہم نجات پاتے ہیں. ہماری زندگی سے وہ تمام کام جو جسمانی ہے، وہ تمام کام کیا کرتے ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نئے ہو گئے، ہم نئی مخلوق بن گئے. اب ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہماری جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو موٹیوز ہیں، ہمارے جو مقصد ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ نئی ہو گئی، ہماری سوچ جو ہے وہ ہر روز نئی ہوتی چلی جاتی ہے، دھلتی چلی جاتی ہے، ہمارے خیالات نئے ہوتے چلے جاتے ہیں. سو یہاں پر بائبل میں بتاتی ہے کہ اگر ہم سٹل جسم میں بو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم کاٹیں گے، کسی چیز کو کاٹیں گے، فصل کو کاٹیں گے ہم اپنی زندگی میں. اور وہ فصل کون سی ہے؟ وہ ہلاکت کی فصل ہے. دیکھیں، بونا کیا ہوتا ہے، بونے سے کیا مراد ہے؟ بونے سے یہ مراد ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں جو کام کر رہے ہیں، آپ کو چیک کرنا ہے میرے کام جو ہے، آیا وہ کام جو ہے وہ میرے جسم کو تو کچھ نہیں کرتے، وہ کام صرف میرے لیے تو نہیں، آیا میرا جو فوکس ہے وہ جسمانی چیزوں کی طرف تو نہیں، میں ہر وقت گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، شہرت، دولت کی طرف تو میرا فوکس نہیں. دیکھیں، آج کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا فوکس یہ ہے، وہ اٹھتے ہیں یہی سوچتے ہیں، وہ جب سونے کے لیے جاتے ہیں ان کی سوچیں بھی یہی ہوتی ہیں، ان کے ڈریمز بھی یہی ہوتے ہیں، ان کو خواب بھی یہی آتے ہیں، کہ کیونکہ ان کا فوکس وہ ہے، ان کی جو دوڑ ہے وہ جسمانی چیزوں کی طرف ہے، ان کا دھیان جسمانی چیزوں کی طرف ہے، ان کے کام جو ہے وہ جسمانی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جسم کے کام بھی ہیں، حرام کاری، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے، گالیاں، یہ تمام طرح کے کام جو ہیں یہ جسم کے کام ہیں. آیا ہمیں چیک کرنا ہے کہ میں کہاں پر بو رہا ہوں، آیا میرے جو کام ہے، ڈیلی جو میں کام کرتا ہوں، جو میں ورڈز ریلیز کرتا ہوں، آیا وہ جو بیج ہے وہ کہاں پر گر رہا ہے. آیا میں جو بول رہا ہوں، میرے جو کام ہے تو میرے جسم کے لیے تو نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اگنور رہ جاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اچھا سوچ رہے ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ سیلفش ہو آپ کے لیے،
क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपने घर के लिए, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। हमारी प्रेयर्स सेल्फिश होती चली जाती है, हमारा बोलना इस तरह का होता है। तो इसलिए अगर आप जिस्म में बो रहे हैं, जिस्म को खुश कर रहे हैं, देखिए जब बीज बोएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप फसल को काटेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? देखिए जब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, एक दिन आएगा कि आपको उसकी उजरत मिलेगी। आप जो गुनाह करते हैं, आप काम करते हैं, और एक दिन आएगा कि आपको उस गुनाह की आपको उजरत मिलेगी। और उजरत क्या है? मौत। सो जो बोएंगे आप वो क्या करेंगे? काटेंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि आप कहां पर बो रहे हैं, आपकी कौन सी प्लेस है? आया वो जिस्म है या रूह है? देखिए जिस्म जो है वो रूह के अगेंस्ट काम करता है, और रूह जिस्म के अगेंस्ट काम करती है। सो मुझे चेक करना है, मुझे अपनी एक्टिविटीज को चेक करना है, मुझे अपने सोचों को चेक करना है, अपने ख्यालात को चेक करना है, अपने मोटिव्स को चेक करना है, अपने मकासद को चेक करना है। आया मेरा जो मकसद है, मेरी जो प्रायोरिटीज है, आया वो जिस्मानी काम तो नहीं, वो काम मुझे तो नहीं खुश करते। वो हो सकता है शायद शॉपिंग हो, आपको शौक हो, चीजों का खरीदने का शौक हो शायद, मगर आपको नहीं पता कि ये काम जो है कभी कभी आपके आप फ्लैशली इसमें कहलाते हैं कि ये शख्स जो है फ्लैशली है, ये जिस्मानी बंदा है। क्यों? क्योंकि इसका हर वक्त क्या है, इसके सोच जो है, इसके ख्यालात जो है वो सारे के सारे जिस्मानी हैं, दुनिया की तरफ है। मैंने इसलिए कहा कि जब वो उठता होगा तो वो सोचता होगा कि आज मैं क्या करूं कि पैसा कैसे कमाया जाए, आज मेरा ड्रीम है उस शोहरत को हासिल करने का, वो मैं कैसे करूं। तो आप क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। आप कहां पर बो रहे हैं? आप अपने जिस्म के लिए बो रहे हैं। आप उन ख्वाहिशों को जो कर रहे हैं, जो ख्वाहिशें आप कर रहे हैं, वो आपके जिस्म को क्या कर रही हैं? आपको तकवीयत दे रही है। आपकी 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 जो आपके जिस्म क्या कर रहा है? आपका बढ़ रहा है। वो फ्लैश क्या कर रहा है? ग्रो करना शुरू कर रहा है, क्योंकि आप उसको उसमें बीज बो रहे हैं। आपका सोचना, आपका करना काम, ये बीज की मानद है जो आप अपनी जिंदगी में बोते हैं। तो इसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो क्या करेगा? जिस्म में हलाकत की फसल को काटेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा जो बीज है, मेरा बीज कौन सा है और मैं कहां पर उसको बो रहा हूं। आपको डेली अपनी एक्टिविटीज को चेक करना है, मेरा फोकस क्या है। देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंसकर क्या करता है? आजमाया जाता है। और जब आजमाइश क्या करती है? हामला होती है, तो क्या करती है? गुनाह को जनती है। और जब गुनाह भर चुका तो क्या वाक़या होती है? मौत वाक़या होती है। आपकी जो ख्वाहिशात है आपको मौत की तरफ लेके जाती है। कौन सी ख्वाहिशात? जिस्म की ख्वाहिशात। खुदा के कलाम में लिखा है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीजों से। और वो चीजें कौन सी हैं? हाँ, कौन सी है? लस्ट ऑफ फ्लेश, और कौन सी? प्राइड ऑफ लाइफ, और आंखों की शेखी, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये तीनों इस दुनिया की ख्वाहिशात हैं। तो इसलिए मुझे देखना है, आपको देखना है कि मैं कहां पर बो रहा हूं, मेरा ज्यादा टाइम कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, ये बीज जो है मैं कहां पर गिरा रहा हूं। मुझे चेक करना है, क्योंकि एक दिन आएगा कि आप इस फसल को काटेंगे, फिर आप कहते हैं कि ये कहां से आ गई, ये प्रॉब्लम कहां से आ गई, ये बीमारी कहां से आ गई, ये गुर्बत अचानक से कहां से आ गई है, ये क्राइसिस कहां से आ गए हैं। फिर हम कहते हैं कि दुआएं करें, क्या हो गया पता नहीं चलता, क्योंकि आपने कुछ किया है, आपने बोया है, आपने बीज बोया है, जो कि आज एक फसल की सूरत में आपको नजर आ रहा है। आपको अब इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। सो हमें डेली अपनी एक्टिविटीज को चेक करना, अपने फोकस को चेक करना है। मैं जिस्मानी तो नहीं,
खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता, और जिस्मानी नीयत क्या है? मौत है, खुदा की दुश्मन है। जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता। आपकी एक्टिविटीज खुदा को खुश नहीं कर सकती, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज खुश नहीं कर सकती। आज बड़ी कॉमन है, आपके दुपट्टे, आपकी जूतियां, ये खुदा को खुश नहीं करती। ये इंसान को खुश करती होंगी, मगर खुदा इससे खुश नहीं होता। ने खुदा खुश होना तो फिर खुदा कहता कि तेन लो दुपट्टे। कभी आपने सोचा कि जब बागे अदन में आदम और हवा थे, वो नंगे थे, वो दुपट्टा था, मगर खुदा फिर भी उनसे क्या करने आता था? पार्टनरशिप के लिए आता था। क्या करने के लिए आता था? और वो कहां पर थे? मगर उन्होंने तो दुपट्टा भी नहीं लिया, कपड़े भी नहीं पहने, मगर वो स्टिल खुदा की प्रेजेंस में थे। खुदा के जलाल ने उनको घेरा हुआ था। हालेलुया। वो जलाल कब चला गया? जब उन्होंने क्या किया? गुनाह किया, या उन्होंने दुपट्टा उतारा, जूती उतार। नो, आपका आप जब गुनाह करते हैं, आपकी जिंदगी से वो क्या करता है? वो गुनाह जो है वो आपकी जिंदगी से जलाल को छीन लेता है। गुनाह आपकी जिंदगी से जलाल को ले लेता है, आपकी जिंदगी से जलाल रिमूव हो जाता है। हालेलुया। और गुनाह जो है खुदा की प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। इसे खुदा की प्रेजेंस में वो थे और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। सो इसका मतलब है कि खुदा की प्रेजेंस में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप उसके जलाल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये दुपट्टा तो ये नहीं करता, मगर ये गुनाह तयन करता है। हालेलुया। आपका गुनाह जो करते हैं वो तयन करता है खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो इसलिए जिस्मानी एक्टिविटीज खुदा को खुश नहीं करती। रिलीजियस लोग खुदा को खुश करने में लगे हुए हैं, खुदा को ढूंढने में लगे हुए हैं, मगर खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करता है। खुदा उनको ढूंढ रहा है, और जो रिलीजियस लोग हैं वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे करें, खुदा को कैसे खुश किया जाए। खुदा ऐसे खुश नहीं होता। खुदा खुश होता है ईमान से, आप उसको पसंद आते हैं। हालेलुया। लोग मान रखते हैं, जब आप उसके बेटे पर ईमान लाते हैं और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक गुजारते हैं, खुदा खुश होता है इससे। जब आपकी राहें सीधी हो, आपकी सोचें सीधी हो, आपके मोटिव सही हो, आपके मकासद जो है वो रूहानी मकासद हो, खुदा खुश होता है आपसे। खुदा इन एक्टिविटीज से खुश नहीं होता। सो जो आप बो रहे हैं, आपको चेक करना है आप कहां पर बो रहे हैं। आप जिस्म के लिए बो रहे हैं या रूह के लिए बो रहे हैं? सो जिस्म में बोने से मुराद है कि आप जो काम कर रहे हैं, फिर कहूँगा, आप जो काम करते हैं, जो आप सोचते हैं, आप जो वर्ड्स रिलीज करते हैं या बोलते हैं, और एक वक्त आएगा कि आप इस फसल को क्या करेंगे? काटेंगे। अच्छा, दूसरी साइड है कि रूहानी, आप रूह में कैसे बोलते हैं? देखिए, आज हम नए सिरे से पैदा हुए और हम रूह में पैदा हुए, हम स्पिरिचुअल हैं। हमारे, मैं कहूँगा, आप दो रेलम्स में, दो आलम में मुक्त करते हैं वन टाइम, सेम टाइम। आप खुदा के हजूर में भी होते हैं और आप इस जिस्म में भी होते हैं, क्योंकि आप रूहानी तौर पर क्या करते हैं? खुदा से कनेक्ट होते हैं। आप जब खड़े होते हैं, आप रूह में क्या करते हैं? खुदा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो जब हम रूह में पैदा होते हैं तो हम रूहानी हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारी जो सोचें होनी चाहिए, वो रूहानी होनी चाहिए। रूहानी शख्स क्या करता है? उसकी सोचें, उसके ख्याल क्या होते हैं? वो रूहानी चीजों की तरफ भागता है। रूहानी चीजें कौन सी हैं? रूहानी चीजें हैं कि आप खुदा की मर्जी को तलाश करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं, वो तमाम चीजें तुम्हें क्या करेंगी? मिल जाएंगी। वो तुम्हारी जिंदगी में क्या होंगी? ऐड होती चली जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही। बादशाही का मतलब है कि हम उसकी मर्जी को तलाश करते हैं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? रूहानी शख्स का मकसद, उसका फोकस ये होता है कि मैं खुदा की विल को तलाश करूं।
मैं खुदा की मर्जी को तलाश करूं, खुदा मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। आप खुदा के पर्पस को तलाश करते हैं, खुदा आप खुदा के पर्पस को देखते हैं कि खुदा का मकसद क्या है मेरी जिंदगी में। ये रूहानी शख्स का फोकस होता है। जब वो उठता है तो उसका फोकस ये होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप रूह में बो रहे हैं। आपकी सोचें, आपके मोटिव्स, आपके ख्यालात, आपके काम जो है वो तमाम अच्छे काम हैं। ख्यालात जो है वो आपके अच्छे हैं, वो रास्तबाजी के आप काम कर रहे हैं। आपकी सोचें उसकी मर्जी को तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप उसकी मर्जी को और उसके पर्पस को अपनी जिंदगी में तलाश कर लेते हैं। हालेलुया। देखिए, पर्पस जो है वो आपको एक डायरेक्शन देता है। जब आपके पास पर्पस आ जाता है, आपके पास एक डायरेक्शन होती है कि मुझे इस जगह पर जाना है, इस सिमत में जाना है, मुझे ये काम करना है, खुदा ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है, खुदा की आज मर्जी ये है, मुझे ये करना है, खुदा की मर्जी। तो रूहानी शख्स का फोकस जो है वो ये है कि उसकी मर्जी को तलाश करता है, उसके पर्पस को तलाश करता है। वो जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं उसकी बादशाह को तलाश कर लूंगा, उसकी मर्जी को तलाश कर लूंगा, उसके पर्पस को तलाश कर लूंगा, तो ये सारी चीजें, दुनिया की तमाम जो चीजें हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, वो चीजें मेरे पीछे भागना शुरू कर दी। हालेलुया। देखिए, वो तमाम चीजें उसी से बिलोंग करती हैं। इज्जत, दौलत और शोहरत कहां से है? आसमान से, नूरों के बाप की तरफ से। मगर जिस्मानी शख्स क्या करता है? वो खुदा को तलाश नहीं करता, खुदा की मर्जी को तलाश नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि इन चीजों को वो खुद हासिल कर ले। और वो तलाश करते करते एक दिन बहुत ही दूर पहुंच जाता है, डीप चला जाता है, उस दलदल में चला जाता है जहां से उसके लिए वापस आना जो है वो कहीं ना कहीं नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारा फोकस रूहानी होना चाहिए। इसलिए चेक करें कि मैं कहां पर बो रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे काम कौन से हैं, मेरे ख्यालात कौन से हैं, मेरी सोचें कौन सी हैं। आया वो जो बीज है वो मैं जिस्म के लिए बो रहा हूं या अपनी रूह के लिए बो रहा हूं। देखिए, अगर आप रूह में बोएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी को काटेंगे, हमेशा की जिंदगी की फसल को काटेंगे आप। और अगर आप जिस्म में बोएंगे तो आप हमेशा की मौत को काटेंगे, आप बर्बादी को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि आप जिस्म में बो रहे हैं, आप पुरानी नेचर में बो रहे हैं, आप ओल्ड पर्सन को खुश कर रहे हैं, आप उसकी ख्वाहिशों को खुश कर रहे हैं। आपका फोकस ये है, आप बो बहा रहे हैं, आपका बीज वहां पर गिर रहा है, और एक दिन आएगा, अगर बीज गिरा है तो एक दिन उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, वो फसल भी उगेगी, और जब फसल उगेगी फिर काटनी पड़ेगी। देखिए, खुदा आपको अवेयर करता है, बीमारी आने से पहले आपको खुदा अवेयर कर रहा होता है। बीमारी ऐसे नहीं कि एकदम से आती, खुदा आपको बता रहा होता है, किसी ना किसी तरीके से बताता है आपको कि बीमारी आने वाली है, ये काम छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो। आप ऐसा नहीं कह सकते खुदा ने मुझे बताया नहीं, मुझे तो पता नहीं चला ये बीमारी कहां से आ गई। लोग कहते हैं जी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पहले तो कुछ महीने था, अचानक से ऐसा हुआ। ये अचानक से नहीं हुआ, रूहानी आलम में ये कब से चल रहा था, और खुदा आपको अवेयर कर रहा था कि आप चीजों को वहीं पर डील करें। मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल दी थी। देखिए, उकाब जो है अगर वो जमीन पर लड़ता है तो वो मारा जाएगा। आपने देखा कभी उकाब को लड़ते हुए, अपना शिकार करते हुए? कहां पर वो शिकार करता? अगर वो जमीन पर करेगा तो मारा जाएगा, अगर वो सांप को जमीन पर मारेगा तो सांप उसको मार देगा, क्योंकि उसका रेलम नहीं है, उसकी जगह नहीं है। वो अपने शिकार को उठाता है और वहां पर बुलंदी में लेके चला जाता है, और आपको पता है कि सांप वहां पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी जगह है, वो उसकी डोमेन है, वो इसीलिए इसको मार देगा। आप रूहानी हैं, अगर आपने जंग जीतनी है तो आपको पहले रूहानी जीतनी पड़ेगी।
खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। हम जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ते, हम रूहानी तौर पर लड़ते हैं। कहाँ पर? शरारतियों रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है। जैसे मैंने कहा कि आप रूहानी पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल बीइंग, आप रूहानी है। आपका जो रेलम है लड़ने का वो रूहानी है। अगर आप जिस्मानी लड़ने के लिए जाएंगे तो आप हार जाएंगे, आप शिकस्त खाएंगे। आप पावरफुल कब हैं? जब आप रूहानी तौर पर लड़ते हैं, जब आप रूहानी होते हैं, आप तब पावरफुल हैं। आपके सामने इब्लीस खड़ा नहीं रह पाता। हालेलुया।